Summer has officially ended, and I'm happy to announce that I have spent this summer, along with all those past summer I have spent it without using an AC. The summer season has always been one of my memorable period of my life. This is the time when schools, colleges are made holidays, जब छुट्टी दी जाती है and we have a lot of time to spend with ourselves. This is the time जब electricity बहुत धोखा देती है and with God's grace I'm still fine and alive. So how did I do it? The important point, the crucial point that stands is I have been in this house since we shifted to here. Matlab, since I was in my mother's womb, I have been in this house. I was born here, and currently I'm 21 years old, and we are still here. Yeah, that's actually sad, but we do not have any other options. And सारे नज़रें मेरे ऊपर ही है. मैं कुछ करूँगा तो I think we can change this house. But this house isn't yet eligible to have an AC. तो बचपन से ही I have been living in this house and I have been, क्या उसको बोलते हैं, मतलब मैं झेलता आ रहा हूँ इसको कि we do not have an AC but still I have to manage it. I had to manage every time. With God's grace, my body has managed to resist नहीं, suscept मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब सह जाना. My body has got this ability to withstand the hot temperature, and I can stay out for 2 hours, 3 hours, anytime you say, outside in the sun without getting myself harmed, but with precautions. मतलब पानी वानी ठीक से पिया तो it will be all good. And most important thing is कि sometimes it's funny to watch people, some of my friends, a lot of my friends, हम लोग कभी बाहर जाते तो in mostly in the summer season they all be longing for कि एसी चाहिए and I am standing there. सही में गर्मी हो रही है, ये गर्मी है. Okay, I do not want to be rude. I do not want to be rude or I do not want to be narcissistic, but ये उनकी लिविंग है. ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन रेस्ड इन एन एसी लिविंग, सो उनको आदत पड़ चुका है बिना एसी के बाहर नहीं रह सकते. तो ओके, इट्स ओके फॉर देम एंड इट्स ऑल्सो टोटली ओके फॉर मी कि आई हैव बीन रेस्ड विदाउट एन एसी. सो आई my body has got the ability to withstand hot temperatures, so I can manage it outside. So how did I do all these? Step one, and this thing you have seen in my previous videos, that I remain naked. Naked मतलब as in shirtless. पैंट पहना रहता हूँ. Shirtless. I stay shirtless. I'd say shirtless. I stay shirtless every time in my house. विंटर को छोड़ के, मानसून को छोड़ के, ये समर टाइम में मोस्ट ऑफ द समर टाइम आई रिमेन शर्टलेस. मतलब मैं शर्ट नहीं पहनता, बस पैंट पहना रहता हूँ. दैट्स बिकॉज सही में गर्मी तो इतनी है एंड I remain shirtless. I remain shirtless every time. Like in the summertime or anytime you come into my house, you'll see me without a shirt. Um, you'll see me without a shirt. And summertime में most in the and and most of the summertime I become the mid-aged uncle type, जो कि ऐसे ही मतलब खाली बदन के रहते हैं. अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ढेर सारा पानी पीना. सो दिस इज़ माई स्टडी टेबल एंड यहीं पे ही मेरा यहाँ पानी बोतल हमेशा से रहता आ रहा है एंड आई एम इन चार्ज ऑफ दिस. मैं हमेशा पानी बोतल फिल करता हूँ और उसको ख़त्म करना, भरना मेरा दायित्व है. तो एवरी टाइम आई गेट बोर्ड बाय स्टडिंग, क्योंकि ये मेरे पास रहता है, नज़रों के सामने रहता है. तो आई गॉट दिस एबिलिटी टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. सो जैसे जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बोलते हैं कि चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, वैसा मेरा फ्रेज है कि पानी पियो सुसु जाओ, पानी पियो सुसु जाओ. या इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी. इट हाइड्रेट्स यू, सारे टॉक्सिन्स निकाल देता है और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है. ठीक है, तो समर टाइम में तो आई से कि पानी खूब ज़्यादा पियो. कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, नहाना, वो भी 3-4 बार. समर टाइम में आई bathed 3 to 4 times.
पहले तो सुबह उठने के बाद आई वेक अप एवरी टाइम एट 3:30 AM इन द मॉर्निंग, और सारे अपने नित्य कर्म मतलब ब्रश व्रश वो सब खत्म करके सुबह 4 बजे नहाने जाता हूँ। और सुबह का जो ठंडा ठंडा पानी बॉडी में लगता है, योर बॉडी फील्स रिफ्रेश्ड एंड यू आर एनर्जेटिक फॉर द डे। सुबह के जितने भी बढ़ती टेम्परेचर होती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो सब आप भुला देते हो जब वो शावर से पानी आप पे गिरता है। ठंडा ठंडा पानी टंकी में रात भर रह के टंकी पूरा गर्म हो जाता, टंकी पूरा ठंडा हो जाता है सुबह सुबह। और जब 11, 12, 1 ऐसे बात करूँ तो मैं 3, 4 बार ऐसे नहाता हूँ, मतलब जब भी मूड करे। एक तो मेरा हो गया सुबह का नहाना, वो मतलब दैट इज़ कंपलसरी। बाकी जो बाकी जो सब नहाना होता है वो दिन के किसी भी टाइम में हो सकता है, शाम को भी। और 12, 1 बजे जब मैं नहाता था, मतलब मूड पे डिपेंड करता है और गर्मी पे डिपेंड करता है। मेनली मोस्ट प्रोबेबली गर्मी पे डिपेंड करता है, मूड पे नहीं। तो मैं ऐसे ही 1 बजे शावर के अंदर घुस जाऊंगा एंड मैं नॉब को मोड़ूंगा। टू माई सरप्राइज मैं ऐसे खुश होके I'll be waiting for the water to come. The moment I turn on the knob, गरम गरम पानी गिरता है मेरे पे। एंड जो मूड बना था कि थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, आई बी फीलिंग रिफ्रेश्ड, वो एक मोमेंट पे गायब हो जाता है। एंड क्योंकि टंकी ऊपर रहता है तो धूप की वजह से टंकी का पानी गर्म हो जाता है, तो जो गरम गरम पानी होता है सब मेरे पे बट कोई नहीं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बाहर आके आई यूज टू ड्राई माई सेल्फ अप विद द फैन। और यहाँ पे कूलर भी है, दिस कूलर, एंड अंदर एक टेबल फैन है, स्टैंडिंग फैन रखा हुआ है। एंड दे है आधा मेरा ज़्यादा क्रेडिट तो इन दोनों को ही जाता है, क्योंकि रात को मम्मी और मैं यही लगा के सोते हैं कूलर। और कभी 1, 2 बार कूलर ख़राब हो गया था तो वी हैव टू यूज़ द स्टैंडिंग फ़ैन पहले था, स्टैंडिंग फ़ैन 2014 से है और ये 2019 में आया, ऑल थैंक्स टू देम। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3, 3, 4 बार नहाना। अभी लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक्सरसाइज और डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड दैट टू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है ना कि धूप ज़्यादा नहीं रहता, और अगर ये टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, योग करो, स्ट्रेचिंग भी, एटलीस्ट कुछ नहीं हो रहा तो स्ट्रेचिंग कर लो, या फिर वेट लिफ्टिंग, कुछ भी करो, मॉर्निंग के टाइम इज़ द बेस्ट टाइम आई से। ये टाइम होता है जब मतलब बॉडी हमारा नया नया उठता है। एंड फिजिकल एक्सरसाइज योग इज़ एन अलार्म फॉर द बॉडी। तुम तो जाग जाते हो, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारे मसल, तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स, उनको भी जगाना पड़ता है। तो दिस इज़ अ गुड वे टू टेल योर बॉडी कि भाई उठ जा, टाइम हो गया है, दिन भर अभी चलना है। एंड समर टाइम में स्पेशली सुबह सुबह वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि मैंने सुबह सुबह बहुत वर्कआउट किया, क्योंकि आई डू नॉट हैव एन AC, तो पूरे दिन भर इतने गर्मी में मैं तो मतलब हालत ख़राब हो जाएगा अगर ऐसे थक जाऊंगा, फालतू में ऐसे थक जाऊंगा एक्सरसाइज करके। तो इट्स बेटर कि मैं सुबह सुबह ही बिन जब धूप मतलब जब नया सनराइज बॉडी में लगता है, द सनलाइट, द सुबह का सनलाइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चार्ज खत्म हो गया, लेस दैन 10% ऑफ बैटरी रिमेनिंग। सो आई वॉज टॉकिंग कि सुबह का जो सनलाइट होता है जब वो बॉडी पे लगता है तो यू गेट एनरिच्ड विथ विटामिन डी, दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। तो इसीलिए इन द समर टाइम एंड एवरी टाइम आई हैव बीन वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग ओनली। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई वुड से कि खुद पे फोकस करो, खुद को ग्रो करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मदर, एंड विल मीट अगैन।